Good morning, friends. Welcome to Arvind Agarwal classes. Today's topic is geometric mean. Question is, what do you mean by geometric mean? You see on the board, this is the definition of the geometric mean. Let small a and b be two positive numbers. It is important to be positive. ये नंबर दोनों पॉजिटिव ही हो सकते हैं, कभी आप ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट कर पाएंगे, अदरवाइज ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट नहीं होगा. We say capital G be the geometric mean between small a and b if a, G, B are in GP. ये नंबर्स GP में होना मस्ट है. Since a, G and b are in GP, therefore common ratio second term divided by the first is equal to third term divided by the second. This is common ratio. Cross multiplication, G square is equal to AB, therefore G is equal to square root of A. This is the geometric mean. कभी भी अगर आपको geometric mean निकालना है, find the multiplication of the given positive numbers and after that find square root. यहाँ देखिए एग्जाम्पल है, find geometric mean of 6 and 24. According to the formula, that is G is equal to square root of 80, that is 6 into 24. Multiply कीजिए, square root find कीजिए, you get the geometric mean. ये स्टूडेंट्स, अब टॉपिक ये आता है, ये तो आपने सिंगल ज्योमेट्रिक मीन स्टडी किया. नाउ यू आर गोइंग टू फाइंड द एंड ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी. देखिए टॉपिक आपका ये है इंसर्शन ऑफ एंड ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन small a and b. Insertion of n geometric means between small a and b. Let a, g1, g2, g3 and so on gn, b are in gp. ये देखिए a नंबर गिवन था, b नंबर गिवन था, मैंने इसके बीच में g1, g2, g3 एंड सो ऑन gn तक ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किए हैं. एंड ज्योमेट्रिक मीन है, और जब आप इसको ज्योमेट्रिक मीन कॉल कर रहे हैं, इट बिकम्स जीपी में होना मस्ट है. ऑल द नंबर्स आर इन. तो क्वेश्चन था फाइंड दीज वैल्यूज. तो इनको निकालिए, ये ज्योमेट्रिक मीन्स क्या है. सिंस देयर आर n plus 2 टर्म्स इन जीपी. n plus 2 टर्म्स कैसे हो गए? G1 से Gn तक n टर्म्स, A n plus 1, B n plus 2, n plus 2 टर्म्स, और यहाँ पर A n plus 2, n plus 2th टर्म, that is the last one which is B. अब इसके लिए फॉर्मूला यूज कर लो, that is A into R raised to the power n plus 2 minus 1. Actually an is equal to ar raised to the power n minus 1. इस फॉर्मूले को मैंने यूज किया है, that is b. Therefore r raised to the power n plus 1 is equal to b upon a. Therefore r is equal to b upon a and this whole raised to the power 1 upon n plus 1. This is the common ratio. इस तरह से हम यहाँ पर कॉमन रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं. अब आपको इसमें से जो भी ज्योमेट्रिक मीन चाहिए, you can calculate yourself now. That is G1. What do you mean by G1? G1 क्या है? G1 is A2. That is first geometric mean and the second term. अगर A को इंक्लूड करके बोलोगे तो टर्म बोला जाएगा, ओनली G1 बोलोगे तो ज्योमेट्रिक मीन बोला जाएगा. जो फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन है that is the second term A2, और A2 होता है AR. Therefore A and b upon a whole is 1 upon n plus 1. This is G1. G2 that is A3 second geometric mean and this is the third term. Third term होता है AR square. A b upon a whole raised to the power 2 already है upon n plus 1 and so on. That is Gn
अगर आप इसी तरीके से इसमें से gn कैलकुलेट करते हैं, दिस इज gn। gn क्या है? gn इज n+1th टर्म, n+1th टर्म। और n+1 टर्म कितना हो गया? ar raised to the power n+1 minus 1 ar raised to the power n, that is a b upon a and its raised to the power n upon n+1। इस तरह से देखिए हम सभी ज्योमेट्रिक मीन को यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ टू गेट द n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन a small a and b। चलिए आइए, now I will discuss with two questions based on this topic। Now the question is, find two positive numbers a and b whose arithmetic mean is 34 and geometric mean is 16। ऐसे टू नंबर कैलकुलेट कीजिए जिनका अर्थमेटिक मीन 34 है और ज्योमेट्रिक मीन 16 है। दिस इज द सॉल्यूशन। लेट नंबर्स b स्मॉल a and b, arithmetic mean is a plus b upon 2 which is 34, geometric mean is square root of ab which is 60। इसमें 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, a plus b is equal to 68, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर SDS स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं तो AB is equal to 256, इक्वेशन नंबर 2। नाउ सॉल्व दीस टू इक्वेशंस, दोनों को सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, a plus b होल स्क्वायर माइनस a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। a प्लस b की वैल्यू इसमें पुट कीजिए 68 होल स्क्वायर माइनस a माइनस b होल स्क्वायर 4 इंटू 256। नाउ फाइंड द सॉल्यूशन। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, तो इसके सॉल्यूशन के लिए यस 68 स्क्वायर, यहां पर 68 का स्क्वायर निकालिए। व्हाट इज द 68 स्क्वायर? 8 8 या 64, 8 6 जा 48 एंड 6 54, 6 8 जा 48, 4 36 and 40, 4 2 1 6 and 4, 4 6 2 4। दिस इज 4 6 2 4। इस साइड से इस वैल्यू को इस साइड में लाइए, माइनस 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 6 जा 24 2 22 2 और 8, दिस इज 10 और यहाँ रह जाता है आपके पास a माइनस b होल स्क्वायर। देन a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कीजिए, दिस इज 0 दिस इज 0, this is 6 and this is 3, then only a minus b is equal to plus minus 6 स्क्वायर रूट फाइंड करने के बाद। अब देखिए यहाँ पर इतनी कैलकुलेशन करने के बाद there are two cases। केस 1, if a minus b is equal to positive 60, तब यहाँ से a plus b is equal to 68 इंक्लूड कीजिए। नाउ सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसको आप सॉल्व कीजिए, यू विल गेट a and b, तो a and b आपके पास आ जाता है। नाउ द केस 2 इज if a minus b is equal to minus 60, then a plus b is equal to 68। अगेन सॉल्व दिस सेकंड सिस्टम। यहाँ से माइनस कंसीडर करके दूसरा सिस्टम सॉल्व कीजिए, यहाँ से भी a and b फाइंड कीजिए। ध्यान रखिए इसमें और इसमें आने वाले दोनों भी a and b ऑलवेज शुड बी पॉजिटिव, एक भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपको यहाँ पर आंसर को रिजेक्ट करना होगा। चलिए आइए, अब हम एक और क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। सी वन मोर क्वेश्चन।
फाइंड n की वैल्यू फाइंड कीजिए इफ a रेज़ टू द पावर n प्लस 1 प्लस b रेज़ टू द पावर n प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b रेज़ पावर n इज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन स्मॉल a एंड b। ये अगर a एंड b के बीच में ज्योमेट्रिक मीन है तो n फाइंड कीजिए। अकॉर्डिंग टू देखिए दिस इज द सॉल्यूशन g इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a b। g की वैल्यू आपको गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, ए एंड बी की वैल्यूज ए बी है। स्क्वायर रूट एलिमिनेट करो, a रेज़ टू द पावर हाफ एंड b रेज़ टू द पावर हाफ। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अगर आपने a से क्रॉस मल्टीप्लाई किया है देन n प्लस हाफ इंटू b रेज़ टू द पावर हाफ प्लस b से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए हाफ प्लस n। दिस इज a रेज़ टू द पावर n प्लस 1 प्लस b रेज़ टू द पावर n। सभी टर्म्स को ट्रांसपोज कीजिए। वन टू थ्री फोर अब हमको पेयरिंग करनी है। इसका इसके साथ हम पेयर बना सकते हैं और इसका इसके साथ हम पेयर बना सकते हैं और पेयर बना करके आपको यहाँ पर इसमें से वैल्यूज को कॉमन लेना है। देखिए आप यहां से और यहां से a रेज़ टू द पावर n प्लस हाफ कॉमन, n प्लस हाफ कॉमन, a रेज़ टू द पावर हाफ माइनस b रेज़ टू द पावर हाफ। इसमें से प्लस b रेज़ टू द पावर n प्लस हाफ इज कॉमन, then b raised to the power half minus a raised to the power half is equal to 0। अब मेरी प्रॉब्लम ये है कि इस ब्रैकेट में यहाँ a पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ a नेगेटिव आ रहा है, तो इस ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट से एक माइनस साइन और कॉमन लीजिए और माइनस साइन कॉमन लेकर के प्लस माइनस माइनस, दिस इज प्लस, इस तरह से आप साइन को चेंज कर सकते हैं। नाउ a raised to the power half minus b raised to the power half is again common, a raised to the power n plus half minus b raised to the power n plus half is equal to 0। चलिए अब जब इन टू ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन 0 है तो हम लोग आइदर और का यूज करते हैं, माइनस b raised to the power half is equal to 0 और a raised to the power n plus half minus b raised to the power n plus half is equal to 0। This either this is equal to 0 or that is equal to 0। Therefore, a raised to the power half is equal to b raised to the power half, or we can say does not depend upon n, depend on n by rejecting। लेकिन इस केस को हमने रिजेक्ट क्यों कर दिया? इसलिए रिजेक्ट कर दिया कि यहाँ पर a and b दोनों इक्वल होना चाहिए, जबकि गिवन नंबर में a and b कभी भी इक्वल नहीं होते हैं और ये n पर डिपेंड नहीं है, और n पर डिपेंड नहीं है तो आप यहाँ से n को कैलकुलेट नहीं कर सकते। आप लिख सकते हैं सिंस a इज नॉट इक्वल टू b। यहां से क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं? हमको n फाइंड करना है तो n किस इक्वेशन से आ रहा है, कैसे आ रहा है? a रेज़ टू द पावर n प्लस हाफ then a upon b होल रेज़ टू द पावर n प्लस हाफ इज इक्वल टू 1। अब इस 1 को बेस a upon b में कन्वर्ट कीजिए, then a upon b रेज़ टू द पावर 0, therefore n plus half is equal to 0 और we can say n is equal to minus। देखिए यहाँ पर n की वैल्यू ये माइनस हाफ आ जाती है, इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ टुडेज होमवर्क आपकी एक्सरसाइज चल रही है 7G, क्वेश्चन नंबर 16 to 18, ओनली 3 क्वेश्चंस। टुडेज होमवर्क आज आपको केवल 3 क्वेश्चन करने हैं, 15 तक लास्ट टाइम में दे चुका था। इस तरह से कंप्लीट 7G एक्सरसाइज को आपको फिनिश करना है। That's all today।
थैंक यू।